Hello everyone, welcome back to Fly Academy. Today we are going to discuss the board exam question which asks for 8 marks. So here is the first question which is also called as the hot question. So this is the first question. The radius of a circle is greater than the radius of other circle by 3 meters. The sum of the areas is 89 pi meters square. Find the radius of each circle. Means here two circles, one is greater circle. Okay, one is greater and second is smaller. So what they are saying, the greater circle having the radius 3 meter greater than the smaller circle. Okay. So first what you have to do, consider R be the radius of the smaller circle. So always write the statement in the sentence because it is very important. Okay. So consider here, let R be the radius of smaller circle. Okay. R be the radius of smaller circle. Now see the question. The radius of a circle is greater than the radius of other circle by 3 meters. So I can say that therefore the radius of greater circle will be what? It is greater than 3 meters. So we can write R plus 3. Okay, now we have considered R is the radius of the smaller circle and you have the radius of bigger circle also, that is the greater circle also. Now the sum of their areas is 89 pi meter square. You know what is the formula of area of circle? Area of circle is nothing but pi r square. So see, now what will be the area of smaller circle? Because radius is r. So what is the area of smaller circle? Area of smaller circle is equal to pi r square. And what is the area of bigger circle? Because you know that area of circle is pi r square and bigger circle having the radius r plus 3. So you can write here area of bigger circle. Area of bigger circle will be pi r plus 3 whole square. Okay. Now according to the given condition, the sum of their areas is 89 pi meter square. So write here according to given condition. I will rub this. Okay. Now see, according to the given condition, the sum of the areas is 89 pi meter square, means area of smaller circle plus area of bigger circle. So here write area of smaller circle plus area of bigger circle is equal to what? Pi r square plus pi into r plus 3 whole square. So pi r square plus pi into r plus 3 whole square. Now take pi common. Okay, because this also consists of pi and here also pi. So you can take pi common. R square plus r plus 3 whole square. And you know area of smaller circle plus bigger circle. The sum of their circle is 89 pi meter square. So write here 89 pi meter square because it is given, it is mentioned in the question. So here pi and pi will get cancelled. So what remains? 89 is equal to r square plus r plus 3 whole square. And apply here identity. Which identity? A plus b whole square. You know a plus b whole square is what? A square plus y ab plus b square. Okay, apply this identity here. So what you will get? 89 is equal to r square plus r plus 3 whole square. A square means r square plus 2 into a into b means 2 into r into 3 means 2 into r twice r into 3 6r. So plus 6r plus 3 square. B square means 3 square. It will be 9. Now solve this. See here r square plus r square, it will be twice r square plus 6r plus 9. And here is 89. Now take this 89 to this side. Here plus 89. Then it will turn to minus 89. Now 2r square plus 6r square. So 6r plus 9 minus 89 is equal to 0. 2r square plus 6r
plus 89 minus 89 will be minus 80 is equal to 0. Now solve this. We will solve here. Okay. See now, I can take 2 common because here also 2, 2 3s are 6, again 2 40s are 80. So I can take 2 common. What remains? R square plus 2 3s are 6, so 3r minus 40 is equal to 0. Means this is the quadratic equation you got. Now here you have to find the roots of this quadratic equation. So see here, r square plus 3r minus 40 is equal to 0. Now find the two numbers. Okay, means which two numbers? After addition you should get plus 3. Okay, after addition you should get plus 3, and after multiplication you should get the number minus 40. Now see, you have to find these two numbers. After addition you should get plus 3. After addition plus 3 means the bigger number having the sign plus, and after multiplication you should get minus 40. Means what? It is clear that one number is negative and one number is positive. And which number is greater number having which sign? Greater number having positive sign. So see, you know 8 5s are 40. 8 5s are 40. Now see, 40. 8 5s are 40. But after addition you are getting plus 3. Means bigger number having the sign plus. And after multiplication you are getting the sign minus 40, means smaller number having the sign minus 5. Now see how to split this. R square plus 8r minus 5r minus 40 is equal to 0. Now take common r, remaining r plus 8. Now from here take common minus 5, remaining r plus 8 is equal to 0. And keep in mind this bracket and this bracket should be equal. Now see, from here you can take r plus 8 common, r minus 5 is equal to 0. So here r plus 8 is equal to 0 and r minus 5 is equal to 0. These are the two numbers, two radius you are getting. So see here, if you will take plus 8 to this side, then you will get r is equal to minus 8. If you will take minus 5 to this side, you will get r is equal to plus 5. Now see, you know radius is always positive. Radius will not be negative. So r is equal to 5 is your answer. So this r is equal to minus 8 will not be your answer. Means your answer is 5. Means 5 meter. Means smaller circle having radius 5 and bigger circle will have the radius 5 plus 3, it will be 8 meter. Okay, got this? Means here first you have to consider the r with the radius of the smaller circle, and according to the given condition r plus 3 will be the radius of the greater circle, and we apply the formula of area of circle and solve it. This is the quadratic equation. You can solve it. You will get the two roots. One will be negative and one will be the positive. And positive one will be your answer because radius is always positive. It is not negative. Okay. Yes. Now we will solve the second question. So this is, if one root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is half of the other root, show that b square is equal to 9ac. क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. अब देखो सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन. इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. अभी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, बहुत जरूरी है. कौन सा है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0. This is the given quadratic equation. What you have to show? To show. देखो स्टूडेंट, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है. You should write statement in the board exam because the presentation of the
आंसर विल लुक वेरी गुड. ओके, मीन्स वो बहुत अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन. इसलिए आप क्या करो, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखते जाओ. ओके, अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको टू शो, क्या शो करना है आपको, व्हाट यू हैव टू शो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac अपॉन 2. दिस यू हैव टू शो. नाउ सी, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप सॉल्व करते हैं तो दो रूट्स तो आते हैं. ओके, सो हियर आल्सो यू विल गेट द टू रूट्स. तो नाउ सी, this question can be solved by the two methods. First, we will do here method number 1. Method 1. Now, in method 1, what is here? मैंने अभी बोली कि quadratic equation हो गए तो दो रूट्स रहेंगे. So here mention here let alpha and beta are is two roots of this quadratic equation. ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay. Now see, according to the given condition, what is given in the question? The one root of the quadratic equation is half of the other. Means according to the given condition, what you can write? According to the given condition, yes, I will say that alpha is equal to half of beta. Alpha is equal to half of beta. And now we know students always write the statement. and ये जो presentation कर रहे हैं वो presentation करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपका आंसर एकदम मतलब एकदम परफेक्ट वे में दिखेगा और मार्किंग भी बहुत इजीली ले सकेंगे और सब स्टेप्स दिखेंगे. जो चेकिंग करने वाला रहेगा he will also get impressed. Okay, so write properly step by step. Okay, now see, we know alpha plus beta is equal to minus b upon a, and what alpha into beta is equal to c upon a. Okay, now give this equation 1 and equation 2. Now see, put this alpha is equal to half of beta in 1. Now right here substituting alpha is equal to half of beta in 1. Therefore equation 1 implies, this is the sign of implies. Now see, तो equation 1 क्या होगा, अल्फा की जगह आप क्या डाल रहे हो, half of beta beta is equal to minus b upon a. Now you know half plus 1 is 3/2. मतलब ये क्या बन जाएगा, half of beta plus beta means 3/2 beta is equal to minus b upon a. Now from here value of beta will be, beta is equal to take 2 to this side. ओके, देखो यहाँ पे क्या है, 2 डिनोमिनेटर में है, तो इज इक्वल टू से उस साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो न्यूमरेटर में जाएगा. ओके, ये थोड़ा कन्वर्शन बहुत जरूरी है, यू शुड कीप इन माइंड. नाउ सी हियर 2 विल गो टू दिस साइड, मींस यू विल गेट minus 2b upon 3a. This is the value of beta. Okay, this is the value of beta. Now see, this value of beta, you got the value of beta. Now see equation 2 implies, मतलब आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा इन 1 आपने पुट किया है 1 में. अभी अपन इक्वेशन 2 में भी पुट करेंगे तो T2 क्या बनेगा, अल्फा की जगह आपको लिखना है हाफ ऑफ बीटा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. इस तरह से आपको क्या मिलेगा, 2 को इस साइड लेके जाइए अभी डिनोमिनेटर में, तो वो इज इक्वल टू इस साइड में जाएगा, तो ये बीटा इंटू बीटा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा और 2 रह जाएगा, तो वो आ जाएगा न्यूमरेटर में 2c अपॉन ए. ओके, बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है आपके पास, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2c अपॉन ए. नाउ सी हियर, नाउ फॉर द डी व्हाट यू हैव टू डू, नाउ you know alpha plus beta is equal to minus b upon a, and alpha into beta is equal to c upon a. But you know the value of beta. What is the value of beta? minus 2b upon 3a. ये आपने तो अभी कैलकुलेट की, तो ये बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. Therefore बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, minus 2b upon 3a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c upon a.
ओके अभी इसको सॉल्व करो। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, b का स्क्वायर, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर आपको पता है हमेशा पॉजिटिव आता है। द स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज positive. And what is the square of b? b square. What is the square of 3? It is 9. And square of a is a square is equal to 2c upon a. See here, this a and one a will get cancelled because here a square means a into a. This one a will get cancelled. Now here you know that 2 ones are 2, 2 twos are 4. ओके नाउ व्हाट यू वांट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac अपॉन 2, मतलब आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू चाहिए, इसलिए बी स्क्वायर को अलोन रखो, कीप बी स्क्वायर अलोन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी सेंड 9a to this side and 2 again 2 to this side, means here what remains, first write what remains, 2b square upon 9a is equal to 3। ओके जब आपने सब कैंसिल आउट कर दिए, रिड्यूस फॉर्म में रिड्यूस कर दिए, तो इतना आपके पास रिमेन है। नाउ सी द प्रूफ एंड सॉल्व इन दैट फॉर्म। नाउ यू वांट बी स्क्वायर, सो ओनली कीप बी स्क्वायर टू वन साइड, मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। 9 if 9 will go to this side means it will, this is in this side, it is in denominator, if ये 9a ये साइड में जाएगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यू विल गेट 9ac, और ये 2 इस साइड में आएगा 9ac अपॉन 2, मींस दिस इज योर प्रूफ एंड हेंस प्रूफ। तो समझा, मतलब इसको ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड जहां पे आपने क्या लिया, अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स वेयर अल्फा प्लस बीटा आपको ये पता रहना चाहिए। देखो ये अपने लिए कि अल्फा और बीटा दो रूट से, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता रहनी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता रहनी चाहिए। तो उसके बाद आपने क्या किया, बस ये जो आपने जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था, जो आपको मेंशन था क्वेश्चन में कि रूट हाफ ऑफ बीटा है, एक रूट हाफ ऑफ अदर रूट है, तो वो कंडीशन को यूज करके ये कंडीशन इसमें भी सब्स्टिट्यूट की, ये कंडीशन इसमें भी सब्स्टिट्यूट की, तो जहां से आपको एक बीटा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी और फर्दरली इसको सॉल्व किया, देन यू गॉट द आंसर, यू गॉट द प्रूफ। Okay, this is the first method. Now see, we will see the second method. देखो वहां पे भी दो रूट्स रहेंगे, यहाँ पे भी दो रूट्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पे दो रूट इस फॉर्म में है, वहां पे देखो अगर आपको जो मेथड इजी लगता है वो मेथड करो। अगेन मेथड 2, ओके दोनों भी मेथड इजी है, आप कोई भी मेथड कर सकते हो। अगर यहाँ से आपको ये पता रहेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो दिस मेथड इज सो इजी। अगर आपको वो नहीं पता है, इस चीज को याद नहीं रहेगा कि एकदम कि अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू होती है, अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यू होती है, तो आप कौन से मेथड से जाओगे। यहाँ पे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट यू नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द टू रूट्स, दैट इज अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे भी लिख लो, लेट अल्फा and beta are the two roots of quadratic equation, okay, ax square plus bx plus c। अभी देखो यहाँ पे ये भी दिया है आपको कि ये भी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या होता है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाफ ऑफ द अदर, ये मेंशन है, तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा, दिस इज गिवन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके नाउ सी यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की तरफ ले जाएंगे, आपको फॉर्मूला मेथड, यू नो द फॉर्मूला मेथड, कि फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपकी जो रूट की वैल्यू आती है, जहां पे आप वो रूट को आप क्या बोलते हो, एक्स बोलते हो, एक्स की जो वैल्यू आपको मिलती है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वाई ए। ओके ये एक आपको पता है, ये एक मेथड होता है रूट्स फॉर्म करने का, जिससे आपको क्या मिलेंगे, दो रूट्स प्लस माइनस, एक प्लस से लेके फॉर्म करो, एक दूसरा माइनस से लेके फॉर्म कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा ही बोलूं कि मुझे यहाँ पे अगर मेरा फर्स्ट रूट, मैंने क्या बोला, अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ से मैंने दो रूट को तो यहाँ पे एक्स के फॉर्म में लिख लिया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वाई से। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मेरा अल्फा एक रूट है, तो अल्फा मेरा कौन सा रूट है, माइनस बी प्लस, ओके
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, और बीटा भी एक मेरा रूट है, तो बीटा में क्या लिखूंगी, ये एक प्लस वाला रूट हुआ और मेरा बीटा वाला कौन सा रूट होगा अभी, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। ये आपकी मेथड सेकंड है। ओके, आपने फर्स्ट मेथड देखी, अभी ये सेकंड मेथड देखो। तो अभी कंडीशन के हिसाब से, ये कंडीशन के हिसाब से अपन देखते अल्फा, अल्फा क्या है आपका माइनस बी। देखो अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा पता है आपको, तो अल्फा की वैल्यू लिख लो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस से इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा क्या है माइनस बी माइनस है, सेकंड रूट था वो आपका, तो आप यहाँ पे लिखो प्लस वाला रूट इसको दे दिया और माइनस वाला रूट बीटा को दे दिया, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। अभी इसको सॉल्व करो, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये ट्वाइस है और ये ट्वाइस है तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर इतना समझ गया। अभी क्योंकि ये दोनों भी कहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो जाते हैं। अगर मैं 2a को इधर ये साइड में लेना चाहती हूँ तो ये 2a यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2, और आपको पता है कोई भी टर्म ऐसा x बाय x फॉर्म में रहेगा तो कैंसिल होता है, जैसे ये 2a अपॉन 2a आ जाएगा, वो तो कैंसिल नहीं वाला था, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दिया। यू हैव एनी डाउट? नो? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन comment me. Okay, again I will solve it. Now see, furtherly how to solve this. Take 2 to this side because 2 is in denominator. Now to this side 2 will come in the numerator. This is how it will become 2 into minus b plus under root of b square minus 4ac is equal to 1 into minus b minus under root b square minus 4ac. Now open the bracket. It is important and multiply 2 to minus b and also to under root b square minus 4ac. Now what you will get? My 2ac. 2 के सामने कुछ नहीं है, बस it having the sign positive. This plus 2 plus into minus, you know, minus 2b. Again plus into plus 2 under root b square minus 4ac is equal to minus b minus under root b square minus 4ac. Okay, now take this b square minus 4ac to this side, means अगर ये इस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और अभी ये वाला आप b इस साइड लेके जाओ तो ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव। ओके, ये नेगेटिव है, तो अभी क्या होगा 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर आएगा तो ये बनेगा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये माइनस बी है, ये माइनस 2b इधर जाएगा तो ये बनेगा प्लस 2b। अभी देखो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये आप बोल सकते हैं ये टर्म इक्वल है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 2b। बड़े इसको कौन सी साइन है पॉजिटिव की, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए 2 माइनस 1 होगा तो क्या आएगा 1 मिलेगा, लेकिन बड़े जो कौन सी साइन है पॉजिटिव की, तो यहाँ पे आंसर रहेगा बस डी। ओके, अभी इसको सॉल्व करते वक्त कैसे सॉल्व करना है देखिए। अभी सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, सी द प्रूफ, व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मेंशन क्या है बी। ओके, अभी इसको बी स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो स्क्वायरिंग कर दो, ये बहुत जरूरी है। जब भी आप सॉल्व करते हो ऑलवेज सी द इक्वेशन एंड सॉल्व द आंसर। ऐसा नहीं होता है कि आप आंसर सॉल्व ही करते जा रहे हो, आपको प्रूफ देखना है, आपको प्रूफ क्या करना है बी स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग इज मस्ट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इज मस्ट, तभी जाके ये बी का क्या बनने वाला है, इट विल बिकम बी स्क्वायर। यस, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा देखो, अगर मैं ये साइड में स्क्वायर करूंगी 3 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू का स्क्वायर लूंगी और यहाँ पे भी मैं स्क्वायर कर दूंगी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर रही हूँ तो क्या हो रहा है देखो, 3 का स्क्वायर तो 9 आ रहा है, लेकिन आपको ये पता है अंडर रूट, कोई भी अंडर रूट का अगर मैं स्क्वायर लेना चाहती हूँ तो वो हमेशा x आएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर वाला टर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्यों होता है, क्योंकि x का स्क्वायर रूट लेना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x इज नथिंग बट व्हाट, x द पावर 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर लेना है मतलब ये और ये कैंसिल करेंगे, पावर क्या बचेगा 1, x द पावर 1 इज नथिंग बट x, इसलिए कोई भी स्क्वायर रूट का आप स्क्वायर कर रहे हो तो यू विल गेट द इंटरनल नंबर ओनली।
ओके, तो आपको क्या मिलेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac भी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे x ही मिला, तो इसका स्क्वायर करूंगी तो मुझे ये वाला अंदर वाला ही मिलेगा। ओके, इज इक्वल टू बी का स्क्वायर करूंगी तो बी स्क्वायर मिलेगा। अभी मुझे प्रूव में बी स्क्वायर है, ये साइड में तो मैं वैसा ही लिख लेती हूँ, यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी क्या करो, इसको सॉल्व करो, ये बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू बी स्क्वायर क्या होता है 9 बी स्क्वायर, 9 इंटू 4 क्या होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 9 इंटू 4 होता है 36 ac। अभी क्या करो, बी स्क्वायर आपको एक साइड में लेके जाना, इसके प्रूफ के वक्त आपको बी स्क्वायर अकेला है एक साइड में, दैट बी स्क्वायर इज अलोन। तो आपको क्या करना है, ये बी स्क्वायर को इधर लेके जाओ, अगर मैं ये बी स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगी तो क्या बनने वाला है, बी स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36ac। अभी देखो बी स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर क्या होगा, ऑब्वियस है ना, माइनस 8 बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36ac। यहाँ से माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, आपको बस क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो आपको 8 भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो 8 यहाँ पे अभी मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर जाने के बाद वो कौन सी साइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36ac अपॉन 8। अभी आपको पता है 36 4 के भी टेबल में आता है, 36 8 भी 4 के टेबल में आता है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा कर सकती हूँ, 4 2 जा 8 4 9 जा 36, मतलब क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac अपॉन 2। ये भी आपका प्रूफ हो गया। मतलब ये दो मेथड से अपन ने प्रूफ किए, एक जहाँ पे आपने बस अल्फा और बीटा ये दो रूट्स लिए, यहाँ पे भी आपने वो भी फर्स्ट मेथड में भी अल्फा और बीटा दो रूट्स लिए, यहाँ पे भी आपने अल्फा और बीटा दो रूट्स लिए। लेकिन फर्स्ट मेथड में क्या था, आपको अल्फा प्लस बीटा की कोई वैल्यू पता थी, और अल्फा इंटू बीटा की ये रूट का प्रोडक्ट एंड रूट का समेशन की वैल्यू आपको पता थी, तो आपने एक इसमें माइनस बी बाय ए से सॉल्व किया, जिसमें सी बाय ए से सॉल्व किया, तो आपने इसको सॉल्व किया। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है ये नहीं पता होता है, तो आप ये मेथड से जा सकते हो, फॉर्मूला मेथड से, जहाँ पे आपको पता है कि रूट हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, इसमें आपके रूट से आएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 5 है, जिसमें आपने क्या लिखा, आपका अल्फा इज द वन रूट एंड बीटा इज द टू रूट, तो ये प्लस वाला जो आपने अल्फा दे दिया और माइनस वाला आपने बीटा, और जैसे आपको था कि गिवन कंडीशन में वन रूट इज हाफ ऑफ द बीटा, तो आपका अल्फा मतलब वन रूट था अल्फा और दूसरा रूट था बीटा, अल्फा इज हाफ ऑफ बीटा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो अल्फा की वैल्यू आपने अल्फा में पुट के हाफ लिए और बीटा की वैल्यू बीटा में पुट के, और आपने इसको सॉल्व किया, you have got the solution. So this is the proof. Okay. Now we will see the third question. It is the question related to the arithmetic progression. Okay. So see, what is the question? If first term of an AP is P, second term is Q, and last term is R, then show that sum of all terms is Q plus R minus 2P into P plus R upon 2Q minus P. Now see here. आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सम। मतलब सम मतलब आप डिनोट करते हैं एपी, एपी में आप डिनोट कैसे करते हैं, एसएन, जो एसएन का फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 T1 प्लस Tn, ठीक है, n बाई 2 T1 प्लस Tn। तो आपको यहाँ से देखो, सबसे पहले यहाँ पे मेंशन क्या है वो लिख लेते हैं, आपको सम निकालना है, मतलब सम आपका एसएन होता है, ओके, ये निकालना है, ये फॉर्मूला का आपको यूज करना है। नाउ सी फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज P, मतलब यहाँ पे लिखो, मेंशन करो आप, लेट फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म आप किससे डिनोट करते हो, दैट इज T1, आपका फर्स्ट टर्म क्या होता है, T1 होता है, और T1 को ही आप A भी बोलते हो, तो जो क्या मेंशन किया है, द फर्स्ट टर्म T1 ऑफ एन AP इज P, वो आपका क्या है, P है, जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज P। नाउ सेकंड टर्म, second term, what is given, second term is Q, so write here Q, okay, and last term denote किससे करते हो, Tn से, okay, last term Tn जो क्या दिया है आपको, is R, okay, is R, let's show that sum of, तो आपको देखो ये सम का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 T1 प्लस Tn,
तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। आपको पता है लास्ट टाइम Tn इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले से पहले आप n की वैल्यू निकालो। मतलब यहाँ पे जो आप फॉर्मूला यूज करोगे, एक Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और एक Sn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जो आपको Tn का फॉर्मूला यूज करोगे तो Tn के फॉर्मूले से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी और n की वैल्यू आप Sn में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको Tn का फॉर्मूला तो यूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये आपने सब मेंशन कर दिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो कि टू शो, आपको क्या शो करना है, टू शो, ये सब लिखते जाओ स्टेटमेंट, क्योंकि आप अगर लिखोगे स्टेटमेंट तो मार्किंग प्रॉपर होगी। ओके, तो आपको शो क्या करना है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो आप इसको किससे डिनोट करते हो, एसएन से। एसएन इज इक्वल टू n बाय 2 t1 प्लस tn। ओके, आपको पता है वी नो tn इज इक्वल टू व्हाट, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन सबसे पहले देखो tn लास्ट टर्म क्या दिया है, लास्ट टर्म tn मतलब ही r लिख लो यहाँ पे। a मैंने a मतलब ही क्या बोली थी, फर्स्ट टर्म होता है जिसे आप t1 से डिनोट करते हो, वो आपको दिया है क्वेश्चन में p। नाउ राइट हियर n माइनस 1 इंटू डी। अब ये d क्या होता है, d इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस होता है, d इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो अभी आपका ये कॉमन डिफरेंस का कैसे निकलता है, जो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकालते हैं। जैसे आप कैसे निकालते हो, t2 माइनस t1 से। अगर मेरा t2 मतलब ये मेरा सेकंड टर्म क्या है, t2 इज द सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म दैट इज t1, तो मेरा सेकंड टर्म क्या है q और फर्स्ट टर्म क्या है p। तो जो मेरा d आने वाला है, स्मॉल d की वैल्यू क्या आने वाली है, q माइनस p। तो अभी ये d की जगह लिखो q माइनस p, मतलब ये क्या बनेगा, r इज इक्वल टू p प्लस n माइनस 1 इंटू d इज नथिंग बट q माइनस p। ओके, अभी इसे सॉल्व करो, पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करो। r इज इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के पहले ये p को ये साइड में लेके जाओ। अगर यहाँ पे p ये साइड में लेके जाओगे तो क्या आएगा, r माइनस p इज इक्वल टू n प्लस सॉरी n माइनस 1 इंटू क्यू माइनस पी। ओके, अभी क्या होने वाला है, ये क्यू माइनस पी को इस साइड में लेके जाओ। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाने के बाद डिवीजन में होगा तो आर माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू एन माइनस 1। अभी n की वैल्यू चाहिए, मैंने अभी बताई जो tn से व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम tn, यू हैव to calculate value of n from the tn and this value of n you have to put in the sn, then you will get the answer. So यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। If you have to calculate the value of any number, keep that number alone। अभी यहाँ पे n को alone रखना है, मीन्स माइनस 1 को ये साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस 1 को ये साइड में जाऊंगी तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा, n इज इक्वल टू r माइनस पी क्यू माइनस पी प्लस 1। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या आएगा, n इज इक्वल टू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी। तो n की वैल्यू r प्लस क्यू माइनस पी मतलब हो जाएगा माइनस 2p अपॉन क्यू माइनस पी। अब ये वैल्यू आपको किसमें डालनी है, एसएन के फॉर्मूले, जो आपकी n की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे लिखो, स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखो, वी नो एसएन इज इक्वल टू n बाय 2 t1 प्लस tn। ओके, ये रब कर देती है। तो अभी देखो Sn, n की वैल्यू क्या आ गई थी, r प्लस 1 बाय 2, यहाँ पे लिखो r प्लस क्यू माइनस 2p अपॉन q माइनस p। ये हो गया आपका n, ये 2 जो n की वैल्यू पुट कर दी, और क्या है t1 प्लस tn। t1 क्या था, फर्स्ट टर्म p प्लस tn इज द लास्ट टर्म, आपका लास्ट टर्म क्या था r। अभी प्रूफ देख लो एक बार, टू शो देख लो, वो ही है, बस आपको भी प्रॉपरली अरेंज करना है। देखो r प्लस क्यू मतलब q प्लस r है माइनस 2p, आपका ये भी टर्म आपके पास आ गया, बस इसको प्रॉपरली अरेंज करो। अभी आपका डिनोमिनेटर में q माइनस p और 2 है, देखो 2 और q माइनस p है, और p प्लस r न्यूमरेटर में है, बस अभी इसको प्रॉपरली अरेंज करो, आपका आंसर आ गया है।
अभी यहाँ पे Q प्लस आर की जगह आपको R प्लस Q की जगह यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रूफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रॉपरली लिख लो Q प्लस आर माइनस Q P। इसको बस मैं अरेंज कर रही हूँ, पूरा आंसर आ गया है इनटू जैसे क्वेश्चन में दिया है P प्लस आर है और P प्लस आर के नीचे आपको 2 इंटू क्यू माइनस पी है, इसको बस ये साइड में लेके जाओ, मतलब अपॉन क्यू P प्लस आर के अपॉन में रखो 2 इंटू क्यू माइनस पी, बस दिस इज योर जो आपकी एसएन की वैल्यू आ गई है हैंड प्रूफ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो टर्म दी है उसको मेंशन कर दिया, means you have mentioned T1 is nothing but P, second term that is T2 is Q, and last term which is denoted by Tn that is R. It is given in the question. Okay, then we know Sn is equal to n by 2 T1 plus Tn. For this Sn you have to calculate the value of n, and this value of n is calculated from this formula that is Tn is equal to A plus n minus 1 into D. तो आपने पूरे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए, पुट करने के बाद सॉल्व किए, फाइनली आपको n की वैल्यू मिल गई। सो सब्स्टिट्यूट दिस n वैल्यू इन Sn इन द फॉर्मूला ऑफ Sn एंड यू हैव गॉट दिस सॉल्यूशन। ओके, now we are going to solve the fourth question. It is related to the probability, chapter probability. Okay, now see here. A bag contains 8 red and some blue balls. One ball is drawn at random from the bag. If a ratio of probability of getting red ball and blue ball is 2:5, then find the number of blue balls. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि what is probability. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ओके, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। एक आपको कंडीशन दी रहेगी, वो कंडीशन में जितने इवेंट्स आ रहे हैं वो आप ऊपर लिखोगे और टोटल जो इवेंट्स है आपके वो नीचे लिखोगे। तो इससे आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द पॉसिबिलिटी, इट इज द पॉसिबिलिटी। तो अभी देखो, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। मोस्टली क्या होता है, जब भी आपको जो भी फाइंड करना होता है उसको एक वेरिएबल से अपन मेंशन कर देते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगी, सी नाउ व्हाट आई विल डू, here you have to find the number of blue balls. Means what I will write here, let the number of blue balls be x. I have mentioned the variable, let the number of blue balls be x. Now see, a bag contains 8 red balls. So here, right here bag contains 8 red balls. So means what I said, bag contains how many blue balls, x, and bag contains how many red balls, 8. See here, 8 red balls, x blue ball. So what, total, therefore total number of balls in the bag. अभी बैग के अंदर टोटल बॉल्स कितने रहेंगे, इट विल बी द समेशन ऑफ व्हाट, रेड बॉल, एंड इट विल बी द समेशन ऑफ रेड बॉल एंड ब्लू बॉल। यस, so total number of balls will be what, number of blue ball plus number of red ball. Yes, so how many blue ball, x, and how many red ball, 8. Means this is the total number of the balls in the bag. Now see, one ball is drawn at random from the bag. If ratio of probability of getting red ball and blue ball is 2:5. So first probability of getting red ball we will calculate, because here given what is given, ratio. Whose ratio is given, probability of getting red ball upon probability of getting blue ball. So first I will calculate what is probability of red ball. मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, probability of red ball निकालूंगी, उसके बाद probability of blue ball. तो सबसे पहले आप लिखो कि what you should write here, probability of red ball of getting red ball. तो क्या है कि probability of getting red ball, it will be number of रेड बॉल्स। मैंने अभी बताई क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल, क्योंकि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, रेड बॉल की चाहिए, गेटिंग रेड बॉल। तो रेड बॉल कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ रेड बॉल
upon total number of balls. So how many red balls in the bag? How many red balls bag contains? 8 red balls. Means 8 red balls. And what is the total number of balls? Total number of balls is x plus 8. Right here x plus 8. This is the probability of getting red ball. Now, whose ratio? Probability of getting red ball and probability of getting blue ball. So secondly, calculate the probability of blue ball. Probability of getting blue ball is equal to number of blue ball upon total number of balls. Now how many blue balls? We have to calculate the number of blue balls. Now only I said that the number of blue balls is x. We have mentioned here, we have considered here the number of blue balls is red. So write here number of blue balls x upon total number of balls. What is x plus 8? Okay, understood. Means you now here you have calculated the probability of red ball and probability of blue ball. Now according to the given condition, so we will rub this. Now according to given condition, see what probability of red ball upon probability of blue ball is equal to what? What is the ratio? 2 upon 5. So what is the probability of red ball? It is 8 upon x plus 8. And what is the probability of blue ball? It is x upon x plus 8 is equal to 2 upon 5. Now see, solve it. So see here, now you can write this reciprocally. इसको अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? ये x plus 8 रहेगा into x plus 8 upon x हो जाएगा इज इक्वल टू 2/5 बराबर. अब यहाँ से क्या होगा? x plus 8 और x plus 8 कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या यहाँ पे? 8 upon x इज इक्वल टू 2 upon 5. तो x की वैल्यू निकालना है. अब भी बताइए कि आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी रहती है उसको क्या करो? एक साइड में रखो, अलोन रखो. तो सबसे पहले आप x को इधर लेके जाओ. ऐसे भी आप इसको एक रिड्यूस फॉर्म में कर सकते थे. 2 1 जा 2 2 2 जा सॉरी 2 4 जा 8. तो क्या होगा? 4 5 जा हो जाएगा 20. 1 into x क्या हो जाएगा? x. मतलब आपके x की वैल्यू क्या आ गई है? 20. तो आप क्या लिख सकते हो? आंसर. ये भी लिखना बहुत जरूरी होता है. लास्ट में आंसर लिखना बहुत जरूरी होता है. तो आप क्या लिखो? द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स in the bag is R 20. ओके, तो सबसे पहले आपको ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होता है करके. यहाँ पे आपको फाइंड करना था नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स. यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स. सो हियर वी हैव मेंशन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल एज x. ओके, इसको अपन ने मेंशन कर दिया है. एंड वी नो द नंबर ऑफ red balls, that is 8. So total number of balls will be x plus 8. Okay, you got the total number of balls. Now you know the probability, that is the number of events upon total number of events. Here we have calculated the number probability of getting red ball. इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिया? number of red ball upon total number of balls. तो अपन red ball आपको दिए थे 8 है. So you have calculated here probability of red ball. Now probability of getting blue ball. How you have calculated it? नंबर ऑफ ब्लू बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल. ओके, तो आपको नंबर ऑफ ब्लू बॉल आपने पहले यहाँ पे मेंशन किया था कि आपने x ले लिया है, तो आपने x लेके इसको सॉल्व कर दिया, x अपॉन x प्लस 8. और फाइनली आपको कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या थी आपकी कि दोनों का भी अगर आपने रेशियो दिया तो आपको कितना मिल रहा है? 2/5. अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल इन दोनों का अगर आपने रेशियो लिया तो आपको क्या मिलने वाला था? 2:5. यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था आपको कि रेशियो कितना मिलेगा? 2/5. दिस इज द गिवन कंडीशन. वो गिवन कंडीशन का आपने यूज किया और आप यू गॉट द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल. ओके ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. एंड ऐसे आपको इसको सॉल्व करना और सॉल्यूशन निकालना है. ओके.